Grace and peace be upon you. Welcome to hosting the Ark Day 18. Today we are looking at a powerful truth from 1 Samuel chapter 5, 3 to 4, where Dagon bowed before the Ark of the Lord. आप सभी पर अनुग्रह और शांति बनी रहे। संतों की मेजबानी दिन 18 में आपका स्वागत है। आज हम 1 शमूएल 5 के 3 से 4 के उस अद्भुत प्रसंग को देखेंगे जहां दागोन यहोवा के संतों के सामने गिर पड़ा। The Philistines believed that they had defeated the God of Israel when they captured the Ark of the Covenant. They replaced the Ark inside the temple of Dagon, thinking their God had conquered the Lord. जब फलिश्तियों ने बादशाह के संतों को पकड़ लिया तो उन्होंने समझा कि उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर को हरा दिया है, इसलिए उन्होंने संतों को दागोन के मंदिर में रखा, ये सोचकर कि उनका देवता यहोवा पर विजय हो गया है। But this was never a battle between two religious systems or two objects. It was a confrontation between the living God and a powerless idol. परंतु ये दो धर्मों या दो वस्तुओं के बीच का संघर्ष नहीं था, ये जीवित परमेश्वर और एक निर्जीव शक्तिहीन मूर्ति के बीच सामना था। The next morning, Dagon was found laying face down before the ark. No human hand pushed him down. The presence of God alone caused Dagon to fall. अगले सुबह दागोन यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरा हुआ पाया गया। किसी मनुष्य ने उसे नहीं गिराया था, केवल परमेश्वर की उपस्थिति ने दागोन को गिरा दिया। When the Philistines placed the Dagon back on his pedestal, he fell again the next morning. This time his head and both hands were broken off. God demonstrated that every idol must bow before his presence. जब फलिश्तियों ने दागोन को फिर उसके स्थान पर खड़ा किया तो अगली सुबह वो फिर गिरा हुआ मिला। इस बार उसका सिर और दोनों हाथ टूट चुके थे। परमेश्वर ने दिखा दिया कि उसकी उपस्थिति के सामने हर मूर्ति को झुकना ही पड़ता है। So who was Dagon? Dagon was the chief god of Philistines. He was worshipped as the god of grain, fertility, prosperity and military success. People trusted him instead of trusting the living God. दागोन कौन था? दागोन फलिश्तियों का मुख्य देवता था। उसकी आराधना अन्न, उपजाऊपन, समृद्धि और युद्ध में विजय के देवता के रूप में की जाती थी। लोग जीवित परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय दागोन पर भरोसा करते थे। Today, Dagon is not just a carved statue. Dagon represents anything that takes God's rightful place in our hearts. आज दागोन केवल पत्थर या लकड़ी की मूर्ति नहीं है। दागोन उस हर वस्तु का प्रतीक है जो हमारे हृदय में परमेश्वर के स्थान को ले लेती है। It may appear as money becoming our security, entertainment replacing devotion, pride replacing humility, self-dependence replacing faith, tradition replacing obedience to God's word, or fear controlling our decisions instead of the Holy Spirit. ये तब दिखाई देता है जब धन हमारी सुरक्षा बन जाता है, मनोरंजन हमारी भक्ति का स्थान ले लेता है, घमंड नम्रता को बदल देता है, आत्मनिर्भरता विश्वास का स्थान ले लेती है, परंपराएं परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के स्थान पर भय हमारे निर्णयों को नियंत्रित करता है। So Dagon can also appear in churches when programs become more important than the presence of God. Personalities become more important than Christ himself. Performance replaces prayer. Human wisdom replaces leading of the Holy Spirit, and reputation becomes more valuable than holiness. दागोन कलीसियाओं में भी दिखाई देता है। जब कार्यक्रम परमेश्वर की उपस्थिति से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, व्यक्तित्व मसीह से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, प्रदर्शन प्रार्थना का स्थान ले लेता है, मानवीय बुद्धि पवित्र आत्मा की अगुवाई का स्थान ले लेती है और प्रतिष्ठा पवित्रता से अधिक मूल्यवान बन जाते हैं। Why did Dagon fall? Not because Israel fought, but because God's presence entered the room. So darkness never negotiates with light. When light appears, darkness disappears. दागोन इसलिए नहीं गिरा क्योंकि इज़राइल ने युद्ध किया, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर की उपस्थिति उस स्थान में आ गई। अंधकार कभी प्रकाश से समझौता नहीं करता। जहाँ प्रकाश आता है, वहाँ अंधकार हट जाता है। The presence of God exposes everything that is of false. Where Christ is truly honored, idolatry falls, pride humbles, and bondages are broken, fear loses its grip, sin is exposed, and the truth is established.
परमेश्वर की उपस्थिति हर छोटी बात को प्रकट कर देती है। जहाँ मसीह का सम्मान होता है वहाँ मूर्ति पूजा गिर जाती है, घमंड नम्र हो जाता है, बंधन टूट जाते हैं, भय अपनी पकड़ खो देता है, पाप प्रकट हो जाता है और सत्य स्थापित होता है। So God did not merely make Dagon bow, he broke his head and his hands. The head represents authority, human wisdom and pride, and hands represent human strength, work and self-effort. परमेश्वर ने केवल दागोन को झुकाया ही नहीं बल्कि उसका सिर और उसके दोनों हाथ भी तोड़ दिए। सिर मानवीय अधिकार, बुद्धि और घमंड का प्रतीक है, जबकि हाथ मान्य सामर्थ, अपने कार्यों और आत्म प्रयास का प्रतीक है। God was declaring that every authority raised against him and every work established apart from him will eventually collapse. परमेश्वर ये घोषित कर रहे थे कि जो भी अधिकार उनके विरुद्ध खड़ा होगा और जो भी कार्य उसने अलग होकर स्थापित किया जाएगा वो अंततः ढह जाएगा। May we always host the presence of God, for wherever his presence dwells, every Dagon must fall. आइए हम सदैव परमेश्वर की उपस्थिति की मेजबानी करें, क्योंकि जहाँ उसकी उपस्थिति निवास करती है वहाँ हर दागोन को गिरना ही पड़ता है। Grace and peace be upon you.